I'll start with what Scratch is about. So, Scratch, now, if you want to learn programming very easily and very interactively, it's a very great tool. So, what do I mean by interactively? So, unlike other programming languages, na, बाकी programming language में there are only numbers and words. There is no pictorial representation like bananas, balloons, apples, or letters that we understand. So, it's a very I would say helpful tool for understanding programming in an interactive fashion. At the end, every programming language is essentially the same. But I think the good part about this is कि you can see stuff happening here in real time. So I think are you understanding what I'm saying? मतलब, what do I mean by difference between Scratch and other programming? I can give an example. So this is what programming in real world looks like Impala. These are just numbers. You not you can't see anything really happening. Whereas in Scratch, it's like this. This looks much better, no? So I think we'll start now. So what I'll do is explain starting say what we are doing here. So I'll remove this also. When you open up Scratch now, I think let's do it together. I mean, एक link भेजता हूँ. Can everybody open this link? Let me just know. मैं जो मैं भेजता हूँ. अच्छा स्टॉप शेयर करना पड़ेगा क्या? मैं चैट में एक लिंक भेज रहा हूँ. सब लोग खोल पा रहे कि नहीं एक बार देख लेना. So what do you see when it's open? Uh, Great. Yeah, you can ignore that video. What we'll create it on our own. So once you remove that video, you can see a cat on the screen. Can everybody see it? Yeah, I'll share my screen now. Yeah. So let's do one thing. Uh, let's not do with cats. Let's do with letters and our favorite words. So my name is Pranav Podwar. People also call me Pods. So I'll make some interactive code with the word pods. So the first thing to do is select a background. So can you see here? यहाँ पे backdrops करके रहता है. Choose backdrop. हाँ तो यहाँ पे you can go and choose a background that you like. So मेरे लिए एक chalkboard makes sense क्योंकि हम अपना नाम लिख रहे हैं. तो इसमें या नाम या तो कुछ अपना we either write our names or maybe any word that you like a lot. Okay? Yeah. Is everyone able to open a backdrop? It doesn't have to be the same as this. Choose any background that you like. Yeah. Yeah. So once you have selected a backdrop, so my name is. So I want to write pods on this chalkboard. So can everybody see here? How do I add a sprite? यहाँ पे choose a sprite करके रहता है. उसके बाद यहाँ पे जाके you can search. तो letters हैं P मिल गया मुझे. So now all I need is O. P O D and S.
सब लोग ने कुछ लिख दिया क्या, कुछ वर्ड? तो अभी मतलब ऐसी वर्ड्स देख के तो कुछ मजा आता नहीं है। सो एंड हेलो, कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, म्यूट हो सकते हो क्या? या आई थिंक या बैकग्राउंड नॉइज चला गया। हेलो या सो अभी हमें कुछ इसे इंटरेक्टिव बनाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब किस किस को बेसिक्स ऑफ स्क्रैच का आइडिया है? हाँ सो क्या करोगे, इवेंट्स में जाके हम कुछ इवेंट दे सकते हैं। जैसे मैं अगर अ, हर एक के लिए अलग इवेंट देते हैं PODS में, तो पहले पी के साथ चालू करते हैं। सपोज अप एरो के साथ आप क्या देखना चाहते हैं, इस पी को हम कैसे चेंज करना चाहेंगे? हाँ, हाइट शो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी 7 लेटर्स का ही है, इसके लिए मैं बस 4 लेटर इनिशियल्स डाल रहा हूँ अपना। मतलब मेरा नाम पोडवाल है, तो मैं इसे छोटा करके पॉड्स करके डाल रहा हूँ। इसका साइज चेंज कर सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और भी अगर अच्छे से फिट करना है तो इसका साइज कम कर देना, 50 करके ऐसा कम छोटा कर सकते हो। यहाँ पे एक साइज का ऑप्शन है हर स्प्राइट के लिए। 7 डालना है तो 7 भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। So all you go and select the size here. If your name is too large, you can shorten Harik. Go to every slide. So go to O, change the size to 50. Go to D, change the size to 50. Go to S, change the size to 50. So I mean any, I would say कि 7 letters आराम से हो जाएगा। Okay? हेलो। हाँ हाँ, हो गया ना वैसे 7 लेटर्स। या या अभी हम लोग ने बहुत छोटा कर दिया इसको, जैसे थोड़ा दूर रखते हैं। हाँ, अगर इसे मुझे बड़ा करना है। रिपीट, आप जानते हो रिपीट क्या करता है? कोई बता सकता है? हाँ, जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना वो वापस उसे करता ही रहेगा जब तक ये नंबर ना हो जाए। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो मैंने एक कंडीशन लिखा है, जैसे ही हम एक अप एरो दबाएंगे तो ये 15, हाँ ये 5 बार, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक अप एरो दबाया, देखा? अगर मैं रिपीट को, हाँ हुआ ना?
और ये 20 डिग्री बोले अब 18 डिग्री। सो कोई बता सकता है अगर मैं रिपीट 5 एंड टर्न 18 डिग्री बोलूं तो एक्चुअली कितना डिग्री वो टर्न हो रहा है? देखिए बोल दो। मैं ओ पे करता हूँ, मैं डी पे करता हूँ सेम चीज। डी पे आई थिंक, हाँ हाँ 90 डिग्री सही बोला। जैसे डी में दिखा है ना 90 डिग्री, जैसे ही मैं अप, ये अप एरो नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, डाउन एरो करता हूँ ना, दोनों हिल रहा है, डाउन एरो करता हूँ, दिखा है ना 90 डिग्री हिल रहा है हर टाइम मैं क्लिक करता हूँ। एक बार क्लिक किया 90, दूसरी बार क्लिक किया 90 हो रहा है क्योंकि वो 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 क्या होता है 90 डिग्री। Yeah, so you're talking about returning this to normal, right? हाँ, so let's do this. When this is clicked, या तो एक से ना when this sprite is click करते हैं, वो बात सही है। तो अगर मुझे इसे नॉर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा? When this sprite is clicked, बता सकते हो क्या करना है? ये पॉइंट 90 डिग्री वाले बोल रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ तो 90 डिग्री हो गया ये। हाँ, सो जैसे मैं अभी अप एरो दबाता हूँ, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, एंड अगर मैं जैसे इस स्प्राइट पे क्लिक करूँ तो एकदम सीधा हो जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन डाला है। ये प्रोग्रामिंग में ना हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे, एक है लूपिंग वाला कि एंड एक है कंडीशनल वाला। सो व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक्ड, व्हेन अप एरो इज प्रेस्ड, ये दोनों कंडीशंस है। तो अप एरो जब दबाते हो तो 5 बार 18 डिग्रीज इट इज गोइंग टू रोटेट। सो 18, अगर मैं इसे बस एक बोलूं तो ज्यादा समझेगा। सो अभी अप एरो दबाओ ना तो बहुत कम हिलेगा, बहुत कम हिल रहा है ना, एंड जैसे ही मैं स्प्राइट को क्लिक करूं ये सीधा हो जाएगा क्योंकि इस कंडीशन में चले जाएगा वो। व्हेन द स्प्राइट इज फ्लैट हो जाएगा, अगर 180 लिखो तो हाँ टेढ़ा हो जाएगा। अगर सीधा रखना है तो 90 डिग्री लिख दो, अगर टेढ़ा रखना है तो 180 भी चल जाएगा। अभी इनकी हमने इसे काफी छोटा कर दिया था ना, इसे अगर मुझे बड़ा करना है कुछ कंडीशन की वजह से, चेंज साइज बाय ना, वो तो सेट भी कर सकते हो, वो तो है। चेंज साइज बाय, हाँ अगर मैं 10 करूं, अगर मैं इसे 50 करूं, हो गया ना पहले जैसा, पहले से भी शायद थोड़ा बड़ा है 30। हाँ 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 हाँ, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना,
इसका साइज। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, तो इस 30 डिग्री से वो ऐड होता जा रहा है। अगर मुझे घटाना है, 192 से 100 जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? -92 करना पड़ेगा। हाँ, -92, राइट। वो फिर ही फाइनल वो 100 तक जाएगा, बिकॉज वो पहले 192 था। तो उसे घटाने के लिए 92 हटाना पड़ेगा। ये हर स्प्राइट के साथ कर सकते हैं। इवेंट में जाओ, when sprite is clicked, तो इसमें हमने 50 से कम किया था ना, पहले 100 था। 100 इसका नॉर्मल है, तो चेंज साइज बाय 50। इसे क्लिक करो, 100 हो गया। पीओ पीओ में से डी और एस को हम ऐसे ही छोड़ना तो सही नहीं है ना, इनको भी बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, क्या करने से? चेंज साइज। कौन सा? हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे करने बोल रहे हो क्या? ओहो, हाइड लेटर के लिए अगर मुझे एस को छुपाना है तो क्या करना है? यहाँ पे हाइड डाल दिया। कौन सा? हाँ हाँ हाँ। इससे बेटर इफेक्ट रहेगा अगर क्या क्या? हम्म। चेंज कलर इफेक्ट। चेंज द कलर। घोस्ट इफेक्ट। हाँ, ये बेटर था। रिपीट। ऑलराइट। वो आ रहा है जा रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो डी आता है, एंड आई थिंक घोस्ट इफेक्ट ना बहुत ज्यादा जल्दी उसे गायब कर रहा है। या उससे बेटर अल्टरनेटिव है, आई थिंक,
इससे बहुत से क्या कर रहे हैं ना, ये ग्राफिक इफेक्ट पहले तो ये करते हैं, उसके बाद हाइड करते हैं और फिर चलाते हैं, वो है। तो घोस्ट इफेक्ट भी तो वही हो रहा है ना, हाइड हो जाता है। एक काम करते हैं, एक्चुअली ना मेरा गोल है बेसिकली ना ये सिखाना कैसे फॉर लूप चलता है, ये लूपिंग कैसे चलता है और कंडीशंस कैसे चलते हैं और उन्हें इंटरैक्टिवली दिखाना। तो घोस्ट इफेक्ट में गायब हो रहा है सब चीजें, तो हम देख नहीं पा रहे हैं। तीन साइज में अगर हम नहीं कर रहे, ऐसे 5 बार करें, इसके 50 के साथ चालू करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक ब्रेक डालना है, 1 सेकेंड का ब्रेक, कि हर 80 डिग्री टर्न होने के बाद अगर 10 सेकेंड रुकना है तो कैसे करना है? वेट 10 सेकेंड, सही बोला। तो जैसे ही मेरा टर्न होगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, 5 सेकेंड के लिए रुकते हैं और इसका साइज बदलते हैं। तो अभी करंटली अगर मैं इसका साइज 50 रखता हूँ, 50 रखता हूँ और इसका डायरेक्शन 90। हाँ, ये अभी सही लग रहा है ना। अगर मुझे मैं ये डाउन क्लिक करूँ तो क्या होगा फाइनली, आपको लगता है? धीरे धीरे टर्न हो रहा है और बढ़ रहा है ना। यस, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। 150 हो गया, बहुत ज्यादा। हाँ, अभी ये जो अपना एस हाइड हो गया, इसे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बट इवेंट्स में व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक नहीं रखना चाहिए ना, बिकॉज हमें मालूम नहीं स्प्राइट कहाँ पे है। थिंक ये रखना चाहिए ना, व्हेन दिस इज क्लिक। अगर हम व्हेन स्प्राइट इज क्लिक बोले तो हाइड हाइड हो चुका है, हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, तो इसके लिए ये रखना चाहिए व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक। सही है। हाँ, फिर ब्लॉक डी। हाँ बता। मेरा पी गायब हो गया है, इसको भी सही करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, वो गायब हो जाता है। चेंज साइज बाय 0 करो, या तो ये डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है ना अभी, या एटलीस्ट चेंज साइज बाय की जरूरत नहीं है ना। जैसे ही डिलीट हम स्प्राइट को क्लिक करेंगे, हमें बस चाहिए कि वो 90 डिग्री पे आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। सो बेसिकली ये कंसेप्ट क्लियर है ना। जैसे एक हम लूप एक जैसे ये कंडीशन का सबसे पहले कंडीशन आता है, अगर मैं इस स्प्राइट को क्लिक करूं तो कुछ होना चाहिए, अगर मैं अप एरो दबाऊं तो कुछ और होना चाहिए। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दूसरा होता है एक लूपिंग स्टेटमेंट्स।
जो है यहाँ पे रिपीट, तो यहाँ पे रिपीट 5 टाइम्स जो हम लोग ने देखा था। मैं स्प्राइट को क्लिक करूँ 90 डिग्री पे, स्प्राइट को अप करूँ, यहाँ पे बहुत फटाफट टर्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे अपने को एक कंट्रोल्स में जाके एक वेट का गैप लगाना चाहिए ताकि हम देख सके, 4 सेकंड का गैप, और आप एरो लगाओ। हाँ, ये चालू हो चुका है, ये पी हर 4 सेकंड अभी थोड़ा थोड़ा टिल्ट 18 डिग्री टिल्ट होगा एवरी सिंगल टाइम। सो ये कंसेप्ट क्लियर है क्या, मतलब सबको लूप क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं? हाँ हाँ, ये चार्ट में कुछ कोई पूछ रहा है क्या सर, माय लिंक इज नॉट ओपनिंग, अरे बाप रे बहुत देर बाद देखा मैंने। क्या हो रहा है ये खोलने में? But did you understand what's happening? मतलब देख के समझ आ गया? You there? Hello? हाँ, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी किसी का बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा था, मैंने अभी म्यूट कर दिया है। हाँ, तो बेसिक चीजें यही समझने, कंडीशन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और स्क्रैच के बेसिक्स, मतलब स्प्राइट क्या होते हैं, हमें बैकड्रॉप्स कैसे चेंज करने हैं, और ये कंडीशन जहां हम लोग ने ढूंढा था ना, पॉइंट इन राइट डायरेक्शन, टर्न 18 डिग्रीज, ये कहाँ कहाँ से उठाने हैं, तो ये हमेशा कोड ब्लॉक से उठाने पड़ते हैं यहाँ पे जो रहते हैं। तो इन जनरल मोशन ब्लॉक क्या करता है, अगर हमें किसी स्प्राइट को आगे पीछे हिलाना है उनके लिए होता है। एक सैंपल दे सकते हैं, अगर ओ का सैंपल देना है, चेंज वाई बाय, हाँ, आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कौन जानता है अच्छे से यहाँ पे? अच्छा हाँ, तो बता सकते हो क्लास को एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता क्या है? बात सही बोला। तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज वाई एक्सेस वाई, अगर यहाँ पे हर स्प्राइट का एक एक्स एक्सेस लोकेशन वाई एक्सेस लोकेशन दिया है, तो ये कंप्लीट स्क्रीन है ना, ओ यहाँ पे पोजीशन वैल्यूज में अगर मुझे चाहिए, क्योंकि कोड ना एक्चुअली सब वैल्यूज पे चलता है, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये सब इन सब का कुछ वैल्यू रहता है, ये एक्चुअल कोड है जो हम हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो हर एक सेकंड 50 से बढ़ाना है आपको, फट जाएगा, बट हाँ कर तो सकते हैं। तो आपको बस ये फॉरएवर लगाना पड़ेगा, तो जैसे ये रिपीट तो ये 10 बार रिपीट करेगा, ये फॉरएवर है ना, हमेशा ये करता ही रहेगा। तो ये सेम चीज करना है, ये चेन साइज बाय 10, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। हाँ, ये उड़ के चला गया। तो ये इसका मैक्सिमम साइज है, आई थिंक, वरना ये फॉरएवर 10 करके इसका मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। 400 कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं।
व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक्ड यहाँ पे डालता हूँ मैं और इसे क्लिक करता हूँ तो ये फॉरएवर बढ़ता रहेगा, इसका मैक्सिमम लिमिट जब तक नहीं पहुंचेगा। 100 में कम करते हैं। एक बार ऐसे नॉर्मल बना दो तो वापस सेम इसकी मैक्सिमम लिमिट तक चला जाएगा। ये क्यों हो रहा है बता सकते हो? ये फॉरएवर की वजह से। हाँ, ये फॉरएवर इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं करना चाहिए। ये रिपीट ब्लॉक ही यूज करो। इसके इसमें आपके पास ज्यादा कंट्रोल है, आपको 10 बार बढ़ाना है, 5 बार बढ़ाना है, 3 बार बढ़ाना है, उसका अच्छे से कंट्रोल रहेगा। फॉरएवर में कंट्रोल नहीं है आपके पास। तो अगर मैं ये हाँ चेंज साइज बाय 10 करूं और यहाँ पे 100 करूं, यहाँ पे 50 करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बस 10 बार चला, और एक बार क्लिक करूँ और 10 बार चलेगा, एक बार और क्लिक करूँ 10 बार चलेगा। सो यहाँ पे अपने पास पूरा कंट्रोल रहता है। फॉरएवर ब्लॉक में वो कंट्रोल नहीं है, इसके लिए ये रिपीट 10 ब्लॉक ही यूज करना बेटर है। सही है ना? क्लियर है? हाँ तो दूसरे का बदल सकते हैं हम इसका। अगर मुझे ये सब सेम कलर में लगे, काफी बोरिंग लग रहा है, अगर मुझे कलर चेंज करना है, मुझे सपोज ऐसा कलर चेंज करना है, कौन सा वाला? हाँ, चेंज कलर इफेक्ट से इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो हम एक लूप में डाल सकते हैं, जैसे हाँ तो रिपीट 10 बार, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ आई थिंक बहुत फटाफट चेंज हो रहा है ना, तो हम देख नहीं रहे, तो हमें एक ब्लॉक डालना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए, फिर ही चेंज करना। देख रहा है कलर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ये हर 2 सेकंड चेंज कर रहा है ना। और चेंज करते करते अगर इसे रोटेट करवाना है तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, बताओ कैसे करना है? टर्न डिग्रीज ना। उसे चेंज करना आसान है, साइज में यहाँ पे जाके 500 को 100 कर दो। मेरा भी वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको कम करना पड़ेगा। अभी डी और एस दोनों घूम रहे हैं। ब्लू डाला है, ब्लू भी सही कलर है। अच्छा नहीं लगता क्या ब्लू कलर? ये बैकग्राउंड मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है। किसको कोई और अच्छा बैकग्राउंड मिला है क्या? हाँ, थिएटर वाला बैकग्राउंड सही लग रहा है।
थिएटर का बैकग्राउंड, एक थिएटर करके एक बैकग्राउंड था। THEA, थिएटर 1 वाला डाला। अब ये चेंज साइज की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत बार चेंज हो चुका है। हाँ ना। हाँ नाइस। हाँ सो आई थिंक बेसिक्स ही मुझे क्लियर करना था आज। सबको अभी स्प्राइट चूज करना आता है। दूसरा, हर एक बैकग्राउंड चूज करना आता है। हाँ, एक चीज आई थिंक बताना भूल गया मैं। अगर कुछ स्प्राइट मिल नहीं रहा जो आपके पसंद का हो, तो बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ना पेंट करके खुद का बना भी सकते हैं, और अगर कहीं इंटरनेट से अपलोड करना है ना तो अपलोड भी कर सकते हैं। कुछ फोटो मिला है ना ऑनलाइन, तो इन्फाइनाइट फोटोज है आपकी। हाँ, उनको अपलोड भी कर सकते हैं। तो पेंट में तो मैं कभी बढ़िया था ही नहीं, तो मेरे को पेंट करने में शर्मिंदा है, तो मैं नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे वैरायटी स्प्राइट तो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर पड़ जाए तो ऑप्शन है यहाँ पे। सेम विद बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड पेंट करना है ना तो खुद का पेंट कर सकते हैं। बस आई थिंक यही बताना था। दूसरा, आपको ये कोड ब्लॉक्स में मोशन ब्लॉक क्या करता है समझ गए ना? ये आई थिंक मैंने ये वर्टिकल हिलाना कभी बताया नहीं ना। एक एक चीज बात करते हैं, ये सब हटा देते हैं। सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मोशन ब्लॉक्स में ना, अगर मेरे को पी को आगे नहीं लाना है, पीछे नहीं लाना है, कैसे करना है? सही बोला। हाँ तो मैं सपोज बोल रहा हूँ राइट एरो, राइट एरो से मुझे आगे जाना है, तो I will have to do x by सब पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे मैं 20 बोल देता हूँ, तो इससे मैं राइट एरो दबाऊं तो आगे जा रहा है। एंड अगर मुझे पीछे लेके जाना है तो सी कॉपी करना है, उसको मैं लेफ्ट एरो बोलूंगा, -20 होगा। हाँ, -20। जैसे ही मैं लेफ्ट दबाऊं तो ये पीछे जाएगा। ये सेम चीज हम ऊपर नीचे के लिए भी कर सकते हैं, बस चेंज एक्स बाय की जगह चेंज वाई बाय आएगा। क्लियर है? या फिर उसके बाद मोशन ब्लॉक समझ लिया, फिर इवेंट्स समझ लिए ना, यहाँ से कंडीशंस आते हैं, और आई मीन कंट्रोल से कंडीशन, कंट्रोल ब्लॉक भी समझ लिए। यहाँ पे हम लोग ने लूपिंग समझा, फॉरएवर समझा, रिपीट समझा, और वेट भी समझा ना। ये इफ वाले में आई थिंक अगले क्लास में कवर करते हैं, बट ये तीनों तो समझ गए ना। वेट से वो 2 सेकंड कुछ, या 1 सेकंड 2 सेकंड, या जितनी भी सेकंड कुछ नहीं करेगा। रिपीट से 10 बार वो सेम चीज रिपीट करवाएगा। फॉरएवर भी एग्जैक्टली रिपीट जैसे, बस वो हमेशा रिपीट करता रहेगा। और हाँ, तो ये ब्लॉक्स क्लियर हैं। कंट्रोल ब्लॉक्स, इवेंट ब्लॉक भी क्लियर होना चाहिए। या बच्चों कुछ डाउट्स है क्या? और बाकी
नहीं ना? हाँ हाँ। अच्छा, वेट का नहीं समझा। मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर कर। ओके ओके, तो मैं वेट ब्लॉक समझाता हूँ एक बार। वेट ब्लॉक ना, जहां पे भी रिपीट आता है ना, वहां से बेस्ट समझने के लिए, सो रिपीट 10 बार, और मैं अगर इसे टर्न 15 डिग्री बोलूं, तो whenever the sprite is click, ये एकदम फटाफट 150 डिग्री टर्न लेगा ना, 15 × 10। इसे क्लिक करो, 150 डिग्री टर्न, 150 डिग्री टर्न, बट ये बहुत फटाफट हो रहा है। तो मुझे थोड़ा गैप चाहिए, मुझे थोड़ा स्लोली इसे देखना है। तो मैं यहाँ पे एक वेट ब्लॉक डाल दूंगा। तो इसका एसेंशियली मतलब है कि आप 4 सेकंड के लिए कुछ बस रुक जाओ। तो मैं इसे टी पे क्लिक करूं, तो ये पहली बार 15 डिग्री टर्न करेगा, 4 सेकंड रुकेगा। देखा आपने, एक बार टर्न हो गया ऑलरेडी, वो धीरे धीरे हो रहा है ना अभी, वो पहले से। समीक्षा समझ रहे? हाँ, सो वो 15 डिग्री टर्न करेगा, 4 सेकंड रुकेगा, 15 डिग्री टर्न करेगा, 4 सेकंड रुकेगा। उससे थोड़ा, क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स क्लियरर दिखेंगे हमें। जैसे अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, चेंज कर, हाँ, सो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा है एवरी 4 सेकेंड। तो ये अगर मैंने ये वेट नहीं डाला होता ना, तो ये बहुत फटाफट हो जाता था, हमें को दिखता नहीं। अभी ये स्लोली स्लोली कलर चेंज करेगा, ये इफेक्ट बेटर दिखेगा हमें, इसके लिए वेट ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। और कुछ डाउट है किसी को? हाँ तो सर, चलो एवरीवन, आई थिंक डाउट्स नहीं है किसी को, होपफुली है। क्या तो बता देना चैट्स में। थैंक यू बच्चों। अगले फ्राइडे हम इसी का ही कंटिन्यू करेंगे।